Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. القرشی المدنی المکی الابتہی اتحامی سید البہی السراج المزیل قوقب الدر صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعدد والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین نبی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل من ذاب يدب الحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرم ہے چہردہ معصومین کا، خصوصی صدقہ ہے فاطمہ، بطول، عذرا، انسیہ، سیدہ، طاہرہ، زکیہ، مرضیہ، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. عزیزان گرامی، سے مد نظر رکھا جائے کہ آج اس کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو کنیزان سیدہ کہتی ہیں کہ ہم بی بی کے کنیز ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو کنیزان سیدہ بتا رہا ہے. تو آخر کنیزان سیدہ ہوتی کیسی ہیں؟ انہیں ہونا کیسا چاہیے؟ کنیزان سیدہ کہتے کسے ہیں؟ شہزادی نے کیا پیغام دیا ہے اپنی کنیزوں کے لیے؟ یہ ساری باتوں پہ میں سوچتا ہوں آج گفتگو کر لی جائے کہ آخر کنیزان سیدہ اصل میں کسے کہتے ہیں، کنیزان سیدہ کو کیسا ہونا چاہیے، شہزادی نے کس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے. اسی لیے میں نے ایک چھوٹا سا قول پڑھا ہے مولا کا، وہی اپنا موضوع اور اپنا ٹاپک قرار دیا ہے. وہ قول یہ ہے کہ آقا حسین نے آواز استغاثہ میں کہا تھا. پہلا جملہ کیا تھا آپ سب کو معلوم ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. دوسرا جملہ ہے حل من ذاب یدب الحرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے، ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے، یعنی انہیں بچائے. اب حرم رسول کون ہے؟ سوال اٹھتا ہے جب رسول امام حسین نے آواز استغاثہ میں کہا کہ حل من ذاب یدب الحرم رسول اللہ، کہ ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے، تو آخر یہ حرم رسول کہہ کسے رہے ہیں؟ حرم رسول کہا کسے جا رہا ہے؟ حرم رسول کہتے ہیں رسول اللہ کی بیٹیوں کو، رسول اللہ کی اولادوں کو. حرم سے مراد کیا ہے؟ آج بھی آپ سعودی عرب میں جائیں گے یا عرب کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں پہ عورتوں کو حرم کہا جاتا ہے. حرم بنا ہے احترام سے، یعنی عورتیں ہیں احترام والی چیز، محترم شے، اس لیے انہیں حرم کہا گیا. ہے کوئی جو حرم رسول یعنی رسول اللہ کی اولادوں، ان کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے بڑھے، ان کی مدد کے لیے بڑھے، ان کا دفاع کرے. تو امام حسین نے بھی حرم کہہ کے پکارا. عرب میں عورتوں کو بھی حرم کہا جاتا ہے، یعنی حرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عورتیں ہیں احترام والی چیز، ایک محترم شے ہے. یعنی جو چیز احترام والی چیز تھی، جو شے احترام والی شے تھی، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ اپنے احترام کو مغربی تہذیب سے فروخت کر چکی ہے، خود کو مغربی تہذیب سے بیچ چکی ہے. یعنی اب آج کا دور جو چل رہا ہے وہ شیطانی تہذیب ہو گئی ہے. ایک مغربی تہذیب یعنی شیطانی تہذیب آج کا وہ دور ہے
لیکن کہا کیا جا رہا ہے عورتیں ہیں احترام والی شے، احترام والی چیز، ان کا احترام کیا جائے، وہ ایک محترم ہے، ان کا اسی طرح سے خیال رکھا جائے، لیکن وہ لوگ خود آج اپنا احترام کھو چکی ہیں۔ آئیے اسی کے ذیل میں ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں کہ امام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے بابا ہیں جن کو سزا دی جا رہی ہے۔ کون سی سزا ہے؟ کہ میرے بابا ہیں اور ارد گرد آگ روشن ہے، اور ہر 5 منٹ کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے جو میرے بابا کو جلتے ہوئے کوڑے سے مارتا ہے۔ وہ بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا باپ اس عالم میں ہے، اسے ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جب خواب سے بیدار ہوا، 2-4 منٹ تمہیدن لینا، اس کے بعد ماحصل گفتگو اٹھنے کے بعد امام کے پاس گیا، جانے کے بعد کہنے لگا مولا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ میرا باپ ایک آگ روشن ہے اس کے درمیان کھڑا ہوا ہے، اور ہر 5 منٹ کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے جو آگ کے کوڑے سے اذیت پہنچاتا ہے، اور میرا باپ چیخ مار کے ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ کس جرم میں مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ میں نے کیا کیا تھا کائنات میں؟ کون سا جرم انجام دیا تھا جس کی سزا اتنی خطرناک دی جا رہی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، تمہارا باپ کیا کرتا تھا وہ سنو۔ تمہارا باپ کرتا تھا کہ اس کے گھر میں، تمہارے باپ کے یعنی تمہارے گھر میں، وہ اپنی بیوی سے جب کوئی کام کہتا، اپنی بیٹی سے کوئی کام کہتا، اور اگر بیوی وہ کام نہ سنتی، بیٹی وہ کام نہ سنتی، مثلاً اگر کہا کہ گلاس میں پانی لے آؤ، اگر پانی نہ لاتی تو غصہ کر لیتا، ناراض ہو جاتا۔ کوئی بھی کام ہو، اگر اپنی بیوی سے کام کہتا اور وہ اگر نہ سنتی تو وہ غصہ ہو جاتا، اپنی بیٹی سے کوئی کام کہتا اور نہ سنتی تو غصہ ہو جاتا، ناراض ہو جاتا، اور یہاں تک کہ اذیت بھی پہنچاتا، یعنی اگر وہ حکم نہ مانتی اس کا تو وہ اسے مارتا بھی تھا کہ میری بات کیوں نہیں سن رہی ہو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں مان رہی ہو۔ اس کے لیے وہ مارتا بھی تھا کہ میری بات سنو، میرا حکم مانو۔ کہ اس کے لیے عذاب، اس کے لیے سزا دی جا رہی ہے؟ کہا نہیں، اس کے لیے سزا نہیں دی جا رہی۔ کافر کا وہ جب اپنا کام کہتا تھا، حکم دیتا تھا کہ یہ کرو یہ کرو، اگر نہیں کرتی تھی تو ناراض ہوتا، غصہ ہوتا، اور اسے اذیت بھی پہنچاتا، مارتا۔ لیکن وہی بیوی، وہی بیٹی جب وہ گھر سے نکلتی تھی، بے پردہ ہو کے بازاروں میں جاتی تھی، تو یہ دیکھ کر اسے غصہ نہیں آتا تھا، وہ ناراض نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی بیوی کو اذیت نہیں پہنچاتا تھا، اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتا تھا، اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اللہ نے سزا اس لیے دی ہے کیونکہ جب اس کا حکم نہیں مانتی تھی تو وہ اسے مارتا تھا، غصہ کرتا تھا، اور جب اللہ کا حکم پامال ہو رہا ہے تو چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ کا اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ اپنا حکم نہیں مان رہی ہے تو تمہیں غصہ آ رہا ہے، ناراض ہو رہی ہو، لیکن جب اللہ کا حکم ہے کہ پردہ کرو، پردہ واجب ہے، لیکن اللہ کا حکم پامال ہو رہا ہے تو اسے غیرت بھی نہیں آ رہی ہے، اب اسے کوئی ناراضگی نہیں، اب اسے کوئی غصہ نہیں، اب کوئی اذیتیں نہیں، اس لیے اللہ سزا دے رہا ہے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہرحال ہر انسان پہ واجب ہے کہ اگر وہ دیکھے تو بتائے، اسے سمجھائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر انسان پہ واجب ہے، وہ اسے بتائے کہ حجاب کیسے کرنا ہے، کس طرح سے نکلنا ہے۔ اور آپ نے اکثر مجلسوں میں سنا بھی ہوگا کہ اگر نامحرم کے ایک بال دکھے تو 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور جانتے صرف اس عورت پہ یا اس بیٹی پہ، اس بیوی پہ لعنت نہیں کرتے، بلکہ اس کے باپ پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کے بھائی پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب سوال، آخر باپ پہ لعنت کیوں ہو رہی ہے، بھائی پہ لعنت کیوں ہو رہی ہے؟ بے پردہ ہو کے بیٹی جا رہی ہے، بے پردہ ہو کے بیوی جا رہی ہے، تو شوہر پہ لعنت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اسی پہ لعنت ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر بیٹی جا رہی ہے تو بیٹی پہ لعنت، لیکن باپ پہ لعنت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس باپ نے اسے شرم و حیا سکھائی نہیں،
इसलिए बाप पे लानत हो रही है। भाई पे लानत क्यों हो रहा है? इसलिए लानत की जा रही है क्योंकि भाई ने बहन को सिखाया नहीं कि इस्लाम में कौन से कवानीन पाए जाते हैं, इस्लाम में किस तरह से रहा जाता है, इस्लाम में पर्दा क्या बताया गया है। इसलिए भाई पे भी लानत, यानी तीनों पे लानत भेजी गई। अब आपने देखा कि अगर अक्सर आप सुनते भी है, अगर एक बाल दिखाई दे तो 70,000 फरिश्ते लानत करते हैं। एक हदीस और है कि अगर एक मर्द के आगे औरत चल रही हो तो 70,000 फरिश्ते लानत करते। क्यों? क्योंकि मर्द औरत पे हाकिम है। मर्द आगे चलना चाहिए, औरत पीछे चलना चाहिए। तो अगर औरत आगे है, मर्द एक पीछे है, तो 70,000 फरिश्ते लानत करते हैं। सबके पास आजकल के ज़माने मोबाइल है, कैलकुलेटर है। कैलकुलेट कीजिए कि अगर एक औरत आगे हो और एक मर्द पीछे हो तो 70,000 फरिश्ते लानत करते हैं। अब जहाँ पे पूरी फौज पीछे चल रही हो, अकेले वाहिद आगे चल रही हो, मुझे नहीं पता कितनी लानतें हैं, वो कैलकुलेट आपके पास है। अब आइए फिर कैसे रहना चाहिए, किस तरह से पर्दा करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। जब पर्दा हर इंसान पे वाजिब है तो कितना पर्दा करना चाहिए, तो आप खुद जाके देख सकते हैं www.wikishia.com। सेस्तानी साहब की ऑफिस से तमाम फतवे जितने निकलते हैं सब उस वेबसाइट पर मौजूद हैं। तो कितना करना है? औरत अपने चेहरे को खोल सकती है और अपने पंजे को खोल सकती है। आप खुद देख सकते हैं, चेहरा खोल सकती है, अगर कर ले तो कोई बात नहीं, अपने पंजे को खोल सकती है। किसी ने सवाल भी किया था चेहरा क्यों खोल सकती है? का इसलिए क्योंकि आज का जो ज़माना है, बच्चियां स्कूल भी जाती है, बच्चियां जॉब भी कर सकती है, सारी चीज़ों के लिए इसलिए कहा चेहरा भी खोल सकती है और पंजे को। बाकी पूरे बदन का पर्दा है, पूरे जिस्म का पर्दा है। अब ये बताइए, जब पूरे जिस्म का पर्दा है, जिस लिबास से पर्दा किया जाए वो लिबास कैसा होना चाहिए? क्या वो लिबास हल्का होना चाहिए? क्या वो लिबास तंग होना चाहिए? क्या वो लिबास टाइट होना चाहिए? नहीं, अगर लिबास टाइट है तो भी पर्दा नहीं है। अगर लिबास हल्का है जिसकी वजह से बदन जाहिर हो रहा हो तो भी पर्दा नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारी दादियाँ और नानियाँ पहनती थी असल पर्दा तो वो है। आप कहेंगे कैसे? वो इसलिए क्योंकि आजकल, अब जुमला सुने यहाँ से, आजकल जिस तरह से जवानों के हेयर स्टाइल बदल रहे हैं उस तरह से नकाब की स्टाइल बदल रही है। चेंजिंग आ रही है, तब्दीली आ रही है। और अगर आज वो नकाब कोई आज की लड़की पहन के निकल जाए तो हर कोई मजा लेगा कि ये कहाँ से पहन के चलाई आई, इतना ढीला ढाला, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? हम पैसा दे दे सिला लो। तो ये पर्दा नहीं है। पर्दा वही था जिसमें बदन जाहिर न हो, जिसमें सारी चीज़ें, असल पर्दा वही है। ये आज का नहीं है कि जिसके पहनने के बाद भी बदन जाहिर हो रहा हो, तो ये पर्दा नहीं है। तो पर्दा बहुत इजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। पूरे बदन का पर्दा है, सिर्फ चेहरा खोल सकती है और अपने हाथों को खोल सकती है। अच्छा, फातिमा ज़हरा ने आखिर किस तरह से पर्दा किया? कहा चादर ओढ़ती रही। किसी ने बताया कि हम बगल में रहते थे लेकिन आवाज़ नहीं सुनी, कभी उनकी शक्ल नहीं देखी। तमाम ऐसे हैं। लेकिन मैं सवाल करूं, शहजादी आप पर्दा क्यों करती है? किसी मर्द के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो आपको बेपर्दा देख ले। मर्द को छोड़ो, बीवी, सूरज के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो आपको बेपर्दगी में देख ले। मर्द को छोड़िए, सूरज के अंदर इतनी हैसियत, इतनी ताकत, इतनी औकात नहीं है कि आपको बेपर्दगी के आलम में देख ले। तो बीबी आप पर्दा क्यों कर रही हैं, हमें बताइए। बीबी ने कहा अगर तुम्हें जानना है तो जाओ फला यहूदी के बाग में देखो, एक शख्स होगा, उससे सवाल कर लेना, उससे मुलाकात कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं पर्दा क्यों करती हो। अब यहीं से मैं अपनी खिताबत का आगाज करता हूँ। मैं चलने के बाद पहुंचा यहूदी के बाग में। पहुंचने
करने के बाद गया, मैंने क्या देखा कि कायनात का अमीर है, माने कुल है, महबरे दिल है, नबाज शरा है, नूर से अखलाक है, ज़ौजे बुतूल है, दामाद रसूल है, फसातो बलागत का मालिक है, आदम की दुआ कबूल करने वाला है, मूसा को दरिया में रास्ता बना देने वाला है, ईसा को मुर्दे का जिंदा करने का सलीका अता कर देने वाला है, यूनुस को बतने माई से निजात दिलाने वाला है। वो यहूदी के बाग में काम कर रहा है, यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहा है। मैं तड़प गया और तड़प के कहने लगा, आप तो कायनात के अमीर है, अरे आपका पोता अगर हाथ धो दे तो जवाहरात निकलने लगते हैं, आपका पोता अगर हाथ धो दे तो जवाहरात निकलता है। आपको किसी और के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है, किसी के यहां मजदूरी करने की क्या जरूरत है? तो मौला ने कहा, मुझे जरूरत नहीं है किसी के यहां मजदूरी करने की, मुझे जरूरत नहीं है किसी दूसरे के बाग में काम करने के लिए। कहा सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो अकबर हुसैन सुल्तानपुरी, मैं इसलिए दूसरे के बाग में मजदूरी कर रहा हूं ताकि कल मेरा चाहने वाला किसी के यहां मजदूरी करना चाहे तो शर्म से निगाहें न झुका ले, बल्कि फख्र से कहे मैं कोई काम थोड़ी कर रहा हूं, सुन्नते अमीर अदा कर रहा हूं। तो मौला ने क्या किया, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने चाहने वालों के लिए काम कर रहा हूँ ताकि कल हमारा चाहने वाला अगर किसी के यहाँ मजदूरी करना चाहे तो शर्माए नहीं, शर्म से निगाहें न झुकाए, बल्कि फ़ख्र से सर उठा के कहे मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सुन्नते अमीर अदा कर रहा हूँ कि हमारे मौला ने भी दूसरे के यहाँ मजदूरी की है, हमारे मौला ने भी दूसरे के यहाँ काम किया है। मैं दौड़ के आया, आने के बाद बीबी के पास आया, बीबी आप पर्दा क्यों कर रही है? कहा अगर तुम गए थे, मुलाकात हुई तो समझ में आ गया होगा, बीबी अपने लिए पर्दा थोड़ी कर रही है। अरे सूरज में भी औकात नहीं है कि मुझे बेपर्दगी में देख ले, मैं आने वाली अपनी कनीजों के लिए पर्दा कर रही हूं ताकि हमारी कनीजें अगर वो पर्दा करे तो शर्म से सर न झुकाए बल्कि फख्र से कह सके हम ये पर्दा सुन्नते शहजादी अदा कर रहे हैं। कोई ये ना हो ये क्या कर रही हो, पर्दा कर रही हो, कहा फख्र से कह सके सुन्नते शहजादी अदा कर रही हूँ, हमारी शहजादी ने पर्दा किया था इसलिए आज पर्दा कर रही हूँ। अच्छा, आजकल जो अटैक हो रहा है, दो चीज़ों पर अटैक हो रहा है, एक फर्श अज़ा पर, दूसरा है हमारी माओ और बहनों के पर्दे पर कि अगर इनकी चादर छिन गई, इनका पर्दा हट गया तो जवान अपने रास्ते से हट जाएंगे, जवान बिखर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए इनके घरों से पर्दा छीन लिया जाए। इसलिए क्या कहा जा रहा है, ये अटैक पे कहा जा रहा है, ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा इस्लाम है कि मर्दों को आज़ाद छोड़ दिया गया और औरतों को पर्दे की जंजीर में कैद कर लिया गया। ये कमेंट किया जा रहा है पर्दा हटाने के लिए। ये कौन सा इस्लाम है कि जहाँ पे मर्द आज़ाद खुले जा रहे हैं और औरत को पर्दे की जंजीर में बांध दिया गया है, उन्हें कैद कर लिया गया है। तो मैं एक ही जुमला हर जगह कहता हूँ कि सुनो, वो मुझे नहीं पता कि किस मजहब में पर्दा है, किस मजहब में पर्दा नहीं है, लेकिन जो इमरान वाला मजहब है उसमें पर्दा है, उसमें पर्दे की कैद है। अब इमरान का काफिया मुझे नहीं मालूम, आप जाने कि इमरान के काफिये में औरत मकान में रहती है या मैदान में रहती है, लेकिन इमरान वाले मजहब में पर्दे की कैद है। वहां दोनों के कवानीन बताए गए हैं कि मर्द के कवानीन अलग है, औरतों के कवानीन अलग है। सुनिएगा यहीं से जुमला, मर्द के कवानीन अलग है, औरतों के कवानीन अलग है। मर्द के कवानीन ये है कि जब रोडों पे चले तो निगाहें झुका के चले, औरतों के कवानीन ये है जब रोडों पे चले तो निगाहें भी झुका के चले, गर्दन भी झुका के चले। औरतों के कवानीन ये है जब उसकी शादी हो जाए तो शौहर का
एहतराम करे। और मर्द के कवानीन ये है, जब उसकी शादी हो जाए तो ज़ौजा का एहतराम करे। मर्द के कवानीन ये है, जब वो रोडों पे चले तो नामहरम को देखने से परहेज करे। औरतों के कवानीन ये है, जब वो रोडों पे चले तो मर्द को देखने से परहेज करे। यानी कवानीन इस्लाम ये बनते हैं कि मर्द मैदान जिहाद से भागने न पाए, औरत मैदान जिहाद में आने न पाए। मर्द मैदान जिहाद से भागने न पाए, क्योंकि अगर मैदान जिहाद से वो भाग गया तो मर्द कहाँ रह गया, और अगर औरत मैदान जिहाद में आ गई तो औरत कहाँ रह गई, वो तो मर्द हो गई। इसलिए दोनों के कवानीन हमारे यहाँ अलग बताए गए हैं कि मर्द के कवानीन अलग हैं, औरतों के कवानीन अलग हैं। अब क्या कहा गया कि मर्द जब चले तो निगाहें झुका के चले, और जब औरत रोड पे चले तो निगाहें भी झुका के चले और अपनी गर्दन को भी झुका के चले। सवाल किया गया आखिर गर्दन क्यों झुका के चले? का इसलिए अगर निगाहें झुका के चलेगी तो पता ये चलेगा शरीफ घराने से है, इज्जतदार घराने से है। अगर गर्दन झुका के चलेगी तो पता ये चलेगा शरीफ नस्लों से है, शरीफ नस्लों से है। इसीलिए दोनों बताया गया है कि निगाहें भी झुका के चले और अपनी गर्दन भी झुका के चले। अब मौला का कौल पढ़ने लग गया हूं। अब ये मेरा जुमला नहीं है, मौला नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, अब जो खामोश रहा अपने मौला का मुजरिम होगा, मेरा नहीं, क्योंकि अब ये मेरा जुमला नहीं, मौला खुद इरशाद फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि दुनिया के वालिदैन सुनो, तुम्हारी घर की औरतों को कैसा होना चाहिए, वो जब रोडों पे चले तो कैसा चलना चाहिए। मौला इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारी घर की माए बहनें रोडों पे सर झुका के चलेंगी तो याद रखना, तुम जब रोडों पे चलोगे तो सर उठा के चलोगे। जब तुम्हारी घर की माए बहनें रोडों पे सर उठा के चलेंगी तो तुम रोडों पे सर झुका के चलोगे। बहुत बड़ा जुमला था मौला का। क्या कहा मौला ने कि अगर तुम्हारी घर की औरतें सर झुका के चल रही रोडों पे तो जब तुम निकलोगे तो तुम अपना सर उठा के चलोगे, फख्र से चलोगे। लेकिन अगर तुम्हारे घर की औरतें रोडों पे सर उठा के चल रही है तो तुम शर्मिंदगी से सर झुका के चलोगे। बहुत बड़ा जुमला था मौला का। अच्छा, फिर आजकल हर कोई चाहता ये है औरतें जो सजती संवरती है इसीलिए ताकि वो चाँद जैसी दिखे। आजकल मिसाल भी उन्हें दी जाती है चाँद जैसी, कि ये चाँद जैसी है। अब आइए मौला से पूछा जाए कि हमारी घर की माओ बहनों को कैसा होना चाहिए, किसके मानिंद होना चाहिए? क्या उनको चाँद जैसा होना चाहिए? उनकी मिसाल चाँद जैसी दी जानी चाहिए? आजकल जितनी भी है सस्ती संवरती ही इसलिए है कि वो चाँद जैसी दिखे। तो हम मौला से पूछ लेते हैं, मौला हमारी घर की औरतों को कैसा होना चाहिए, किसके मानिंद होना चाहिए? क्या उन्हें चाँद जैसा होना चाहिए? तो मौला ने इरशाद फरमाया, सुनो, हमारी तुम्हारी घर की औरतों को और हमारी कनीज़ों को चाँद जैसा नहीं होना चाहिए। हमने पूछ लिया मौला आखिर चाँद जैसा क्यों नहीं होना चाहिए? मौला ने कहा चाँद जैसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो चाँद जैसी हुई तो हर गिरती पड़ती निगाहें देख लेंगी। कहा अगर वो चाँद जैसी हुई तो हर गिरती पड़ती निगाहें उन्हें देख लेंगी। मौला फिर कैसा होना चाहिए उन्हें? कहा तुम्हारी घर की औरतों को, हमारी कनीज़ों को चाँद जैसा नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें सूरज जैसा होना चाहिए, ताकि कोई देखना चाहे तो देखने से पहले निगाहें झुका ले। आज आप जाइए सूरज को देखिए, खुद ब खुद निगाहें झुका लेंगे। मौला ने कहा कि हमारी कनीज़ों को, तुम्हारी माँ बहनों को सूरज जैसा होना चाहिए कि अगर वो सूरज जैसी हुई तो देखने वाला खुद ब खुद निगाहें झुका लेगा कि ये कनीज़ाने सैयदा गुजर रही है, ये पर्देदार गुजर रही है। तो कहा चाँद जैसी नहीं, सूरज जैसी होना चाहिए ताकि खुद ब खुद निगाहें झुक जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह से 40 मिनट हो गया है, बस 2-4 बातें और कि जितनी भी, अच्छा देखिए हमने कहा क्या कहा था, एहतराम वाली चीज़ है।
एक मोहतरम शय है ये, इन्हें पर्दे में रखने की ज़रूरत है। जुमला पढ़ने से पहले एक मिसाल दे दूं, आपके पास कोई भी कीमती शय हो वो आप पर्दे में रखेंगे, उसे छिपा के रखेंगे। मिसाल, अगर सोना चांदी आपके पास है तो आप उसे संदूक में रखेंगे, बंद कमरे में रखेंगे। अगर वही सोना चांदी या जवाहरात हीरे अगर आप यहाँ अपने घर के दरवाजे पे रख दें तो अगर वो चोरी हो जाए, आप किसी से पूछे भाई मेरा सामान यहाँ रखा हुआ था, बहुत कीमती था, सोना चांदी जवाहरात थे, क्या आपने देखा किसी को ले जाते हुए? वो तमाचे मार के कहेगा जब इतना कीमती था तो दरवाजे पे रखने की क्या जरूरत थी? जब इतना ही कीमती था तुम्हारे लिए तो दरवाजे पे रखने की क्या जरूरत है? मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं, समझने की जिम्मेदारी आपकी है। कीमती शय को पर्दे में रखी जाती है। अगर आप कीमती शय को दरवाजे पे रखेंगे तो कोई भी लेके चला जाएगा। अब सामने वाले से पूछ भी नहीं सकते, वो तमाचे मार के कहेगा जब कीमती थी तो बंद करके रखना चाहिए था, खुले में क्यों रखा? तो आइए मैं दिखाऊं, अल्लाह ने जितनी भी कीमती शय है अल्लाह ने उसे पर्दे में रखी है। आपकी निगाहों में नहीं होगा लेकिन मैं दिखा देता हूं, इशारा कर देता हूं। आपके पास जितनी भी कीमती शय है अल्लाह ने उसे पर्दे में रखी है। कुरान है कीमती इसलिए है जुज़दान में, काबा है कीमती इसलिए है गिलाफ में, 12वां इमाम है कीमती इसलिए गैबत के पर्दे में, औरत कीमती इसलिए पर्दे के कपड़े में। का जितनी भी कीमती शय है अल्लाह ने उसे पर्दे में रखी है। अब कोई ये न सोचे कि पर्दे से अजमत घटती है। आइए 2-4 जुमले वो भी बता देता हूँ कि पर्दे से अजमत बढ़ती है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है जब मैं बाहर जाता हूँ पढ़ने के लिए तो एक आध कमेंट आ जाते हैं कि मौलाना ये हम औरतों की बात है, माई पर्सनल थिंग, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए, हम चाहे पर्दा करें या ना करें, माई पर्सनल थिंग, ये हमारा मैटर पर्सनल मैटर है। तो मैं कहूँगा अमर बिल मारूफ में कोई पर्सनल मैटर नहीं होता। मिसाल दे देता हूँ, आप अपने शौहर के सामने जो लिबास चाहे पहने, लेकिन जब बाजार में आएंगी तो पर्सनल नहीं होगा। अब देखिए मैं मिसाल देता हूँ, मसलन ये एक कश्ती है, फर्श अज़म मिसाल दे रहा हूँ, एक कश्ती है, हर कोई इस कश्ती में सवार है। मसलन हम जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, सब ने टिकट ले रखी है, हमने भी टिकट ले रखी है, सबकी सीट बुक है, हमारी भी सीट बुक है। अब कश्ती दरिया में चलने लगी। अब जब दरिया में चलने लगी तो हमने क्या सोचा, एक चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद अपनी ही सीट पर, अपनी ही कुर्सी पर सुराख करने लगे। अब इंसाफ से बताए, आप सुराख करने देंगे? आप कहेंगे मौलाना ये क्या कर रहे हैं, क्यों कश्ती में सुराख कर रहे हैं? मैं कहूँगा माई पर्सनल, ये मेरा पर्सनल मैटर है, अपनी कुर्सी पे सुराख कर रहा हूँ, अपनी सीट पे सुराख कर रहा हूँ। टिकट देखना हो देख लो, मैंने टिकट बुक की है, इसी सीट पे मेरी सीट है। तो आप कहेंगे मौलाना साहब अगर सुराख हो गया तो तन्हा आप नहीं डूबोगे, बाकी हम सब भी डूब जाएंगे। अगर इस कश्ती में सुराख हो गया तो सिर्फ आपकी ये कुर्सी नहीं डूबेगी बल्कि सब के सब डूब जाएंगे। तो पता ये चला अगर हम अकेले कश्ती में होते तो पर्सनल मैटर होता, लेकिन अगर सबके साथ चल रहे हैं तो पर्सनल मैटर नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अपने शौहर के सामने जैसा चाहो लिबास पहनो, वो पर्सनल मैटर है। बाजार में आओगी तो पर्सनल मैटर नहीं होगा। अब एक मिसाल और दे देता हूँ कैसे पर्सनल मैटर। देखिए 2 गुनाह है, एक इनफरादी गुनाह, एक इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी गुनाह उसे कहते हैं जो अकेले गुनाह करे, कोई दूसरा वो गुनाह हमें देख के ना करे। इज्तिमाई गुनाह वो है जो हमें देख के दूसरा भी गुनाह करे, साथ में लोग गुनाह करें, वो इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी गुनाह वो है जो तौबा इस्तगफार करने के बाद माफ़ हो जाता है। इज्तिमाई गुनाह वो है जो जल्दी माफ़ नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ।
नहीं, अगर ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ तो रब्ते मसाइल पे आ जाता हूँ। तो क्या है इज्तिमाई गुनाह? अब देखिए ये पर्दे के लिए भी है। जैसे मसलन हमने एक बेहतरीन लिबास पहना, एक तंग लिबास, एक छोटा लिबास पहना और बाज़ार में गए। बाज़ार में जाने के बाद दो चार ने और देखा और देखने के बाद कहा बहुत अच्छा है, हम भी खरीदेंगे, हम भी पहनेंगे। ये हो गया इज्तिमाई गुनाह, क्योंकि आपको देख के दूसरे भी वो काम करने लगे। मसलन मिसाल के तौर पर आप दो चार महीने वो लिबास पहने, फिर उसके बाद इस्तग़फ़ार किया, तौबा किया कि हम गलत थे, पर्दा करना चाहिए था, ठीक है, आपने छोड़ दिया, आप पर्दा करने लगी। लेकिन इंसाफ से बताइए, जो आपको देख के वो लिबास पहन रही है, क्या उन्होंने तौबा किया? क्या उन्होंने इस्तग़फ़ार किया? क्या वो सुधरी कि नहीं सुधरी? तब्दीली आई कि नहीं आई? तो इज्तिमाई गुनाह हुआ कि नहीं? अब वो जो देख के आपको पहन रही है, वो जब तक पहनी गई आपके कोटे में गुनाह आता रहेगा। एक तो ये हो गया इज्तिमाई गुनाह। अब जो असल गुनाह बताना था दूसरा सुनो इज्तिमाई गुनाह। दूसरा इज्तिमाई गुनाह ये है कि आप शिया हो, आप क्या काला लिबास पहनो, काला लिबास पहनने के बाद बाजार में आओ, बाजार में आने के बाद लोग देखे, देखने के बाद कहे अरे ये तो शिया की औरत है, बेपर्दा बाजारों में है। अब कहेंगे ये इज्तिमाई गुनाह कैसे हो गया? इज्तिमाई गुनाह इसलिए हो गया क्योंकि अब कोई ये नहीं कह रहा है कि फला औरत थी, हर कोई कह रहा है शिया औरत। तो अब इससे शियत बदनाम हो रही है, अब इससे पूरी कौम बदनाम हो रही है। तो ये भी इज्तिमाई गुनाह है। तो एक ही दरख्वास्त करूंगा, अगर आपको पर्दा नहीं करना है तो काला लिबास पहनना छोड़ दो, क्योंकि अगर काला लिबास पहना और पर्दा नहीं किया तो पूरी कौम की बेइज्जती है उसमें, कि शिया की औरतें बेपर्दा होती हैं, शिया की औरतें बेपर्दा चलती हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि कभी भी पर्दे से अजमत घटती नहीं है, पर्दे से हमेशा अजमत बढ़ती है। 3 पर्दे आपको मैं दिखाऊंगा, 3 पर्दे आप बताइएगा, देखिएगा, अगर कहीं भी इस पर्दे में अजमत घटती नजर आए तो आप खामोश रहिएगा, लेकिन अगर पर्दे से अजमत बढ़ती हुई नजर आए तो मेरा हक मुझ तक पहुंचाइएगा। एक पर्दा है करबला का, सुने अब यहीं से 3 पर्दे गिनाऊंगा। एक पर्दा है करबला का कि इमाम हुसैन ने जनाब अली अस्कर को अबा के दामन में छिपाकर, पर्दा डालकर जब उसे लेके आए तो दुनिया ने समझा कुरान, असगर को कुरान समझा। अजमत बड़ी कि नहीं बड़ी? पर्दे से अजमत बड़ी, असगर को कुरान समझा। एक पर्दा है करबला का, जब असगर पे पर्दा डाल के लेके आए तो लोगों ने क्या समझा? दुनिया ने समझा कुरान। एक पर्दा है सिफीन का, अब्बास चेहरे पे नकाब डाल के आए, दुनिया ने समझा अली। अजमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अजमत घटी नहीं ना। 3 पर्दे मैंने कहा गिनाऊंगा। एक पर्दा करबला का, असगर के चेहरे पे नकाब डाली, दुनिया ने कहा कुरान। सिफीन का पर्दा, अब्बास ने चेहरे पे नकाब डाली, लोगों ने क्या कहा? अली। अब तीसरा पर्दा देखिए, तीसरा पर्दा शबे हिजरत का, अली बिस्तरे रसूल बसा। तो पर्दा करने से अजमत घटती नहीं है, पर्दा करने से अजमत बढ़ती है, पर्दा करने से अजमत बढ़ती है, अजमत घटती नहीं है। पर्दा करने से वकार बढ़ता है, मेयार बढ़ता है, बुलंदी बढ़ती है, शान बढ़ता है। तो पर्दा हर किसी को करना चाहिए। देखिए असगर के चेहरे पे पर्दा डाला तो लोगों ने समझा कुरान, अब्बास ने चेहरे पे पर्दा डाला तो लोगों ने समझा अली। अली जब बिस्तरे रिसालत पर सो गए, चादर डाली तो लोगों ने समझा नबी। अब कोई हम
हमसे ये ना पूछे कि तुम्हारा इमाम कहाँ है, हमारा इमाम पर्दे में है। तो पर्दा करने से अजमत बढ़ती है, अजमत घटती नहीं है। तब कोई हमसे न पूछे इमाम कहाँ है, अजमत बढ़ती है। तो हर किसी को पर्दा करना चाहिए, हर किसी को पर्दा करना चाहिए। वक्त ज़्यादा हो रहा है, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो आगे की गुफ्तगू होगी। तो पर्दा कितना अहम है, अब आपको दिखाऊं पर्दा कितना अहम है कि आप मकातिल की किताब पढ़ेंगे तो जनाब ज़ैनब भी जब चादर छीन ली गई थी उनसे, यहाँ तक कि सर भी ज़ख्मी हुआ था, चादर छीन ली गई, हर मोड़ पे जनाब ज़ैनब ने किसी मोड़ पे ये नहीं कहा कि मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो। न पानी का सवाल किया, न खाने का सवाल किया, एक ही जुमला कहा, ए मुसलमानों मैं रसूल की नवासी हूँ, एक चादर दे दो। अल्लाह अकबर। हर मोड़ पे शहजादी ज़ैनब चादर का सवाल करती रही कि मुझे एक चादर दे दो। क्या नहीं पता था शहजादी को कि चादर मिल जाएगी? पता था, लेकिन कायनात को बता रही थी कि चादर कितनी अहम है। चादर ओढ़ना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। अय्याम फातिमिया है ना, वसीयत भी पढ़ देता हूँ। वसीयत भी जनाब फातिमा ज़हरा की यही तो थी, ए अली मेरी लाश पे चादर डाल देना, ए अली मेरी लाश पे चादर डाल देना। दूसरी वसीयत क्या थी? ए अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। अल्लाह अकबर, कैसा एहतमाम करेंगे अली, क्या क्या वसीयतें हो रही है। लाश पे चादर डाल देना, मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। अरे जिससे मैं नाराज हूँ उसे मेरे जनाजे में ना आने देना। अल्लाह अकबर। ज्यादा मसाहब नहीं पढ़ना, बस चंद जुमले मसाहब के पढ़ने हैं कि शहजादी ने वसीयत कर दी। वसीयत तो की ना, लेकिन वसीयत क्यों की जानते हैं? अल्लाह अकबर। ये जुमला सुने क्या क्या हुआ था मदीने में। अल्लाह अकबर। जब मलून आए, मैं उन्हें मलून नहीं, मैं उन्हें सहाबी नहीं कहता, मैं हमेशा उन्हें मलून कहता हूँ जिसने रसूल की बेटी के ऊपर जुल्म किया हो। अल्लाह अकबर। आए, दरवाजे पे दखुल बाब किया, दखुल बाब करना था, कहा अबुल हसन को बाहर भेजो। शहजादी ने आवाज दी, अबुल हसन नहीं जाएंगे। तो जानते हैं एक मलून ने क्या कहा? एक मलून ने कहा, अरे तुम औरत की बात सुन रहे हो, औरतों की बात में ना आओ। अरे दरवाजे में आग लगा दी जाएगी, वरना तुम अबुल हसन को बाहर भेज दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही सुना कि दरवाजे में आग लगा देगी, तो शहजादी चाहती तो सख्त लहजे में जवाब दे सकती थी, लेकिन शहजादी ने कितनी नरमी से जवाब दिया, क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जिसमें रसूल आके सलाम किया करते थे? क्या उस घर में कितनी नरमी से जवाब दे रही है? क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जिसमें आए ततहीर नाजिल होती थी? क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जिसमें रसूल के छोटे छोटे बच्चे हसन और हुसैन रहते हो? कहा कुछ भी हो, हम आग लगा देंगे। अब तारीख का जुमला सुनो, मसाइब का जुमला सुनो। अरे जब लोगों ने कहा कुछ भी होगा हम आग लगा देंगे, शहजादी एक मर्तबा दरवाजा बंद करने लगी कि एक मलून कहता है मेरे हाथ में कोड़ा था। अरे मैंने उस कोड़े से जिस हाथ को रसूल आके ज़हरा के हाथ का बोसा देते थे, अरे उसी हाथ पे उस मलून ने कोड़ा मारा। अब जो कोड़ा मारा, शहजादी चीख मार के दीवार में जाके टकराई, आवाज दी, ए बाबा अब आपकी बेटी पे ये भी होगा। बाबा आपकी बेटी पे ये भी मसाइब होंगे।
آگ لگا دی گئی. اس کے بعد جانتے ہیں آگ لگا دی گئی, دروازہ گرایا گیا. سب کا مصائب سنا ہوا ہے, دروازہ گرایا گیا. اب یہ جملہ سنو, میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا لیکن ایک عالم ہے جن کا نام ہے آیت اللہ قمپانی, وہ اپنے مرثیے میں لکھتے ہیں جب ایک ملعون نے دروازے پہ لات ماری تو دروازہ شہزادی کے اوپر گرا. ارے میں کیا بتاؤں وکیل کا قصہ کیا ہے, وکیل کا قصہ کیا ہے جو شہزادی کے سینے میں پیوست ہوا تھا. مرثیے میں کیا بیان کرتے ہیں, میں یہ جملہ پڑھ دیتا ہوں. یعنی ان کے مرثیے سے پتہ چلتا ہے کوئی ایسی ویسی کیل نہیں تھی, بلکہ وہ کیل وہ تھی پہلے زمانے میں اس کیل کے ذریعے سے دروازے کو جوڑا جاتا تھا. ارے جب اس نے لات ماری ہے تو دروازہ اکھڑ کے شہزادی کے اوپر آ کے گرا. ارے وہی کیل تھی جس سے دروازہ جوڑا جاتا ہے, وہی کیل شہزادی کے سینے میں دھسی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. اللہ اکبر. اجرکم الزہرا. لو جملہ مصائب کا سنو. جب شہزادی کے سینے میں وہ کیل دھسی نا, پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا دیوار تھا, دیوار میں شہزادی تھی, آگے دروازہ تھا, در و دیوار میں شہزادی تھی, اور لوگ اس دروازے پہ چڑھ کے اندر داخل ہونے لگے. اب یہ قیامت کا جملہ ہے, دیکھتا ہوں کیسے برداشت کرو گے. ارے اس دروازے پہ جب ملعون چڑھ کے اندر داخل ہونے لگے تو جانتے ہیں در و دیوار میں شہزادی تھی. ارے دروازے پہ اپنے پیر کو رکھ کر, اپنے پاؤں کو رکھ کر جب اندر داخل ہونے لگے, ارے شہزادی در و دیوار میں پسنے لگی, شہزادی در و دیوار میں پسنے لگی. ارے پسلیاں ٹوٹنے لگی, پسلیاں ٹوٹنے لگی. ایک مرتبہ شہزادی کو احساس ہوا, آواز دے دی, اے بیزا میرا محسن مر گیا, بطن میں میرا محسن شہید ہو گیا. اے فضا میری مدد کو آ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا محمد